ANS News. What we really believe, or the chairman believes, is in fact at last mile. What we say, everything hospital is treated well, is under very controlled environment. Very all the duties and Central area leadership from Marsh and Apollo hospitals and my colleagues and other media person here. So this project what we started, actually we are doing lots of community activity which I want to show you how we do and what kind of projects we are and how this ambulance project is going to help us in doing a lot of community work which we are already doing. So just give a brief and overview of the project, what we are doing, and how this what three pillars are the empathy, dignity, and respect, what we focus on. So this topic is tell you all the overview that we are working on the background of empathy, dignity, and respect. Our work is in 40 districts and we started doing lots of other projects other than the art thing which we are doing a training program, BLS and master training, which comes under Project Precision. So vision is that our main focus is on preventive care and we want to reach out to billion people over the period of time and give them, provide them the basic treatments and programs. And our footprints are 2 medical camps around 8 lakh plus people and monthly medicine we have provided to 1 lakh, over 1 lakh people and 20,000 people we have treated with the BLS and possibility. 2 rupees was given to us for this screening program. Since inception until October we have done 27 live. Small, I won't take much time on that. So last year we did as a sample pilot project cancer screening. We did total eye screening there in Prayagraj. And this was last year we inaugurated our emergency care center in Ayodhya Ram Mandir. And it was very nicely made. It won't look like it's the normal state. We have a volunteer program also we wanted to participate in that. We have already started a small video. This was a Punjab that we provided support to people in Punjab and there are some cases which might be going on. We did a hard campaign and we have trained around brief of collecting and also we have received the Global Excellency Award and these are the names of our activities and these are our partners. ॲम्ब्युलन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आपण फर्स्ट एड जे म्हणतो ज्या घरामध्ये किंवा रस्त्यावरती काही इमर्जन्सीज होतात त्या कव्हर करण्यासाठी मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ टेक्नॉलॉजी हे खूप महत्वाचं असतं. टुडे ज्यावेळेस आपण हे करतोय त्याच्यामध्ये अपोलो फाउंडेशन थ्रू बिलियन हार्ट जे फाउंडेशन आहे आणि मार्श मॅक्लेनन हे आपल्याला सपोर्ट करून हे ॲम्ब्युलन्स देत आहे आणि अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई हे होस्ट करणार आहे. याचे 2 गोष्टी आपण यूज करणार आहोत. त्याच्यामधले पहिली म्हणजे इमर्जन्सी मध्ये जे पेशंटला जरूरत असते घरी आपण इमर्जन्सी येते किंवा रस्त्यावर इमर्जन्सी येते त्यावेळेस तो सपोर्ट करणं आणि सेकंड एज्युकेशनल ऍक्टिव्हिटीज आपण ज्यावेळेस म्हणतो की इमर्जन्सी आहे आणि त्याच्यानंतर काय केलं पाहिजे त्याच्यासाठी अवेअरनेस कॅम्पेन आपण रन करणार आहोत. हे 2 मुद्दे आहेत. आपण ज्यावेळेस नितीन एक्सप्लेन करत होते की देशामध्ये इमर्जन्सीची सिच्युएशन थोडीशी पुअर आहे कारण की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे तेवढं बळकट इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे आणि सेकंड लोकांमध्ये ती अवेअरनेस नाही आहे. तर मार्श आणि बिलियन हार्ट फाउंडेशनच्या थ्रू आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर घेतोय आणि अपोलो नवी मुंबई मॅनपॉवर आणि सपोर्ट सिस्टम जे आपण म्हणतो एज्युकेशन आणि हे करणार आहोत. ह्या अनुषंगाने हा प्रोग्राम आपण आज इथे करत आहोत. काय काय फॅसिलिटी असतील कौन से फैसिलिटी है उसमें?
सो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो आईसीयू में होता है, जो क्रिटिकल पेशेंट को जरूरी होता है, चाहे मॉनिटरिंग हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, वो पूरा वो एम्बुलेंस में अवेलेबल है। और जो भी पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर लेंगे तो उनका ट्रीटमेंट उधर का उधर स्टार्ट हो जाएगा, जो भी उनका कंडीशन है। इसमें और एक एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी टेक्नोलॉजी के साथ वो पेशेंट का ऑडियो और वीडियो हॉस्पिटल के अंदर आएगा। जो भी हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस कनेक्टेड है, नजदीक से नजदीक एम्बुलेंस में, तो डॉक्टर वहां पे गाइड कर सकता है कि क्या और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या कितना फ्लूइड चढ़ाना है, जो भी ट्रीटमेंट देना है वहां पे वो पूरा गाइड करके पेशेंट को जितना स्टेबलाइज करके ला सकते हैं। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट कि हॉस्पिटल के अंदर जो तैयारी होनी चाहिए वो पेशेंट को रिसीव करने के लिए, चाहे वो सर्जन हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे ब्रेन के न्यूरोलॉजिस्ट हो, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये सारा जो प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं वो हॉस्पिटल ऑलरेडी रेडी रहेगा। पेशेंट का ऑलरेडी वो आप सोच सकते हैं कितना टाइम जल्दी वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये है। तो ये एम्बुलेंस में ये पूरा रोड साइड केयर एज वेल एज हॉस्पिटल रेडीनेस ये साथ में होगा। तो जो गोल्डन आवर बोलते हैं क्रिटिकल पेशेंट के लिए, जो प्लैटिनम मिनट्स भी बोलते हैं, पहले फ्यू मिनट्स, आधा घंटा, एक घंटा में जो होना चाहिए वो तुरंत स्टार्ट हो जाए। सर बहुत अच्छी बात है कि आज जो कॉस्ट है या पैसा लगेगा, क्या है उसका जरा कारण बताइए। अप टू 30 किलोमीटर ये जनता के लिए ड्रॉप पिकअप फ्री रहेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। उसके साथ में बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि रोड पे या घर में पेशेंट जो बीमार रहेगा उसको अपोलो तक लेके आ सकते हैं, या पेशेंट को यहाँ लेके आना है, मीन्स पेशेंट का विश रहता है। तो इस केस में हम नियरेस्ट हॉस्पिटल, समझो इमरजेंसी है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी ड्रॉप करेंगे, और समझो हम यहाँ तक लेके आ सकते हैं तो यहाँ तक लेके कॉल वही रहेगा ना? 1066 1066। एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? एक सेकंड में उनका एक चीज ऐड कर दूंगा, बिकॉज उन्हें 1066 का पूछा है। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी आपने आज देखा है, वो टेक्नोलॉजी में जैसे कॉल लैंड होता है तो वो एसएमएस जाता है पेशेंट को ट्रैक करने के लिए एम्बुलेंस कितना दूर है, क्योंकि वो उबर सिस्टम जो आपको मालूम है, ओला, वैसे हमारे एम्बुलेंसेज में नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। तो जैसे ही पेशेंट ने कॉल किया तो सबसे नजदीक एम्बुलेंस है वो एक्टिवेट होगा, पेशेंट को भी पता चलेगा कितने टाइम में आ रहा है। तो वो भी कॉल के साथ एक एडिशनल फीचर है। नवी मुंबई के लिए नवी मुंबई के बाहर नवी मुंबई है, और 30 किलोमीटर तक समझो हमें चेंबूर से भी कॉल आता है, कभी कभी कल्याण से भी आता है, तो हम ये सुविधा देते हैं। बट टाइम जो गोल्डन आवर बोलते हैं, हम ये क्यों डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ये टाइम क्रिटिकल इमरजेंसीज होती है, हमारे जो डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से किया जाएगा, और जितना एरिया कवर हो सकता है उतना करेंगे, और जैसे जैसे ये रिस्पॉन्ड बढ़ता जाएगा वी विल एक्सटेंड द नेटवर्क। Doctor, in the first week, how many ambulances are deployed? As on today, Marsh has given us 3 ambulance, and हमारे भी 2 ambulance है, total 5 ambulance deployed है। And are you looking for further sponsorships for this? Not actively, but समझो किसी ने हमने कोई डोनेट कर रहा है कॉमन कॉज के लिए, we will be more than happy to support. And what is the kind of ambulance can you please? Difficult pricing, difficult to say. 50 to 60 lakhs for the ambulance. And equipment plus अगर कोई संस्था सर आपको equipment, how much? Every equipment has a different Different equipment. let's say the ambulance that is there below, it is fully equipped. So what would be the cost of that? So we will give the cost for ambulance separately. जो vehicle cost plus medical equipment cost, very difficult to say. Running cost, we will give you that cost. Maybe sometime. Let How that. did the local authorities and citizens collaborate with Apollo in order to make sure the maximum utilization of this ambulance is done? So both the things that I said earlier, कि एक तो awareness, Yeah. हम लोग का पब्लिक का एक biggest challenge वो है, because they don't wait for an ambulance, they don't even call an ambulance. I can ask you all, how many of you know which is the ambulance number near you? So you may not know. डॉक्टर का नंबर पता होगा, रिलेटिव का नंबर पता होगा. So that awareness is very important. कि which ambulance, which equipped ambulance is closest. आपके फैमिली में God forbid कुछ नहीं हो, but you should know that number. So that awareness is the most important thing that we want to spread through this. And education as well. जहाँ पे समझो नजदीक एम्बुलेंस 5 मिनट पे है, तो ईस्ट एम्बुलेंस और हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसके हिसाब से फर्स्ट एड अवेयरनेस, जहाँ पे आपको क्या करना है पहले 2 मिनट 5 मिनट पे, बाय द टाइम एम्बुलेंस कम्स we'll also have इनिशिएटिव। मैम का हाथ पहले सॉरी। I see that mostly the kind of cities you have. So, what benefits will you provide to the patient? So, like you saw with what I presented and with ma'am presented, so we are going to the remote areas, we are going to the communities, we are training them, and our training is open for all. So, we can only
sort of spread it as far. Our chairman sir's vision is only that. That is why we have a whole foundation Foundation. dedicated to that, and each Apollo hospital in every area is spreading that. So definitely the aim is to spread it all across as far and wide as we can. Here, as you rightly said, rural areas screening also will be done. Blood collections, basic screening Health also will be done. Health camps, awareness camps, health talks. Is not only आप उनके लिए क्या कर रहे हो, बट आप एजुकेशन देके एक आदमी को भी राइट टाइम पे कॉल करें. और हमारे लिए नहीं, समझो आप रायगढ़ रूरल के बारे में बात कर रहे हो, समझो अलीबाग है, तो कम से कम समझो जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहे हैं, one person calling right time and nearest hospital helping them also serves the purpose. सर डॉक्टर और जो ये है कितने रहेंगे उसमें नर्स एम्बुलेंस So each ambulance में एक fully trained paramedic बोलते हैं, emergency medicine technician, एक proper course है. So they are fully trained in doing जो भी emergency में required है, चाहे वो heart related हो, stroke related हो, trauma related हो, वो हर टाइम एम्बुलेंस के अंदर रहेंगे. डॉक्टर्स एज रिक्वायर्ड तब रहेंगे. नहीं तो इसके लिए ये सुविधा जो ऑडियो विजुअल है, आप समझ लो कि डॉक्टर अंदर ही है बट वर्चुअली कनेक्टेड. जनता जो आपको देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनको किस तरह से अपील करेंगे कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो तो आप संपर्क करें. सबसे पहले तो मैं वापस एक ही चीज रिपीट करने वाला हूँ कि वो खुद अपने आप को बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड में ट्रेनिंग लो. और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा, उनको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरे से सबसे नजदीक. एक दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ, हार्ट रेडी हॉस्पिटल, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल. मतलब कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें हार्ट रिलेटेड सारी सुविधाएं हैं और वहां पे आपको पता है कि दिवाली का दिन हो, क्रिसमस हो, रात के 2 बजे हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में करेक्ट एंगल से जाएगा. तो आप अगर जनता की बात करें, जनता को ये 2 चीज करनी है. एक, खुद को ट्रेन करना है बेसिक लाइफ सपोर्ट और फर्स्ट एड में, और दूसरा अपने आजू बाजू अवेयरनेस रखना है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये यहाँ पे जाएंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट टाइमली मिलेगा. So, are these ambulance equipped to handle pediatric, cardiac and trauma emergencies specifically? If yes, then how? Like I mentioned earlier, the training, the emergency medicine technician is trained in all these emergencies. Pediatrics also? Yes, in pediatrics also the equipment is also available and they will be able to do what is required in those critical minutes. Alright. And that how you say it's training, and second is infrastructure is available inside the ambulance. Very good.